Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Tech English. Today I will teach you second story, The Black Aeroplane, for chapter 2 story about flying. So this story is written by Frederick Forsyth. This story is about a pilot who is the narrator himself. He was flying his aeroplane Dakota to England. When he took off the flight, the weather was clear, but suddenly he was surrounded by a storm. The situation was that he was unable to decide that what to do. Either he should take the risk or he should go back to Paris. His instruments also were not working, like his radio, his compass were dead, and he was unable to see anything. He was unable to find the direction. So he was held by a pilot of a strange black aeroplane. After reaching England, he went to the control room and he asked about that strange aeroplane. He found out that there was no strange aeroplane in the sky. There was the single aeroplane that the narrator was flying himself. So it was just like the mystery that who helped him in the stormy clouds. So this was all about the story. जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर. सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्सिथ, who is an English novelist, journalist, former spy means jasoos, as well as he is a political commentator. He is well known for thrillers, and this is the list of his best known thrillers. His work frequently appear on bestseller list, and mostly works have been adapted to film, and his books have been sold in more than 30 languages. So this was all about the author. Now let's see the theme of the story. So the theme of the story is to have faith and believe in yourself in difficult situation. कि जब कभी भी हमारी लाइफ में difficult situation आए, crucial time आए, तो हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, बजाय कि हमें उस सिचुएशन से भागने के. One need to be self-determined if he or she wants to do something in life. The pilot was an adventurous person who loved to fly, and the absence of the clouds in the sky made him happy about flying alone. So we will see in the story that the narrator is a pilot actually, and he is an adventurous person. Actually, the sky was very clear, that's why he thought of a flight. He was looking forward to spending time with his family, which shows his concern and love for his family. His adventurous spirit is reflected through his willingness to take a risk and to fly straight into the storm. तो क्या होगा स्टोरी में, अचानक से जब फ्लाई कर रहा था तो अचानक से क्या होता है, बहुत सारे बादल आ जाते हैं, एक तूफान आ जाता है, और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो उस सिचुएशन को फेस करे या उसे एस्केप करे. तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन को फेस करेगा, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वो काफ़ी ब्रेव है, काफ़ी एडवेंचरस है. His idea of being led by another aeroplane is the subconscious mind that guides him in the right direction. और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको गाइड किया, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उसके मन में फेथ था खुद के लिए. He does not lose confidence but has a presence of mind to stay calm. और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो खुद पे भरोसा नहीं छोड़ता, बल्कि अपने माइंड को शांत रखता है. तो अगर कभी भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसे फोर क्वालिटीज़ हैं जिनसे हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना कर सकते हैं. देखते हैं वो क्या क्वालिटीज़ है. पहला है फेथ, कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए. दूसरा है बिलीव. थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो हम उन सिचुएशन को कभी भी फेस नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे. और फोर्थ है होप. हमारे अंदर अगर होप होगी तभी हम किसी चीज़ को फेस करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट रख पाएंगे, अपने पे बिलीफ रख पाएंगे, अदरवाइज हम उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाएंगे. सो दिस वॉज द थीम ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. तो जब नरेटर ने अपनी फ्लाइट स्टार्ट करी तो उस समय वेदर कैसा है देखते हैं. मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब जो मून है वो भी निकला हुआ था. इनके जस्ट बिहाइंड, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. तो वेदर एकदम सही है,
आसमान जो एकदम साफ है और वो फ्लाइट को उड़ाने के लिए बहुत सही है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। जब वेदर सही नहीं होता है तो कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाई जाती है, क्योंकि फिर आप डायरेक्शन नहीं देख सकते हो और फिर प्लेन जो है वो क्रैश हो सकता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो यहाँ पे स्लीपिंग कंट्री साइड ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रात को जा रहे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था जब ये अपने प्लेन को उड़ा रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एरोप्लेन का नाम। तो इनके एरोप्लेन का क्या नाम है? डकोटा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ जा रहे थे और कहाँ से जा रहे थे। तो ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, किससे? अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो जब ये अपने एरोप्लेन को उड़ा रहे थे तो उस समय किस बारे में सोच रहे थे? ये सोच रहे थे अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर के बारे में, कि ये जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो अब इन्होंने अपनी वॉच पे देखा, टाइम क्या है? 1:30। तो सुबह का 1:30 हो रहा है। ओके। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। अब ये सोचने लगी कि मुझे पेरिस कंट्रोल पे कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन क्या होता है? एरोप्लेन का जो आगे वाला पार्ट। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो जैसे ही इन्होंने एरोप्लेन के आगे वाली साइड तरफ देखा, मतलब ये यहाँ बैठे, तो इन्होंने जब आगे की तरफ देखा तो क्या देखा इन्होंने? कि जो सिटी की लाइट्स हैं वो दिख रही हैं, मतलब कि ये इंग्लैंड पहुँचने वाले हैं, इंग्लैंड से ज़्यादा दूर नहीं है। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on the way to England. Over. तो अब ये पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि डकोटा DS088। तो ये 088 क्या है? DS088 क्या है? ये इनके एरोप्लेन का कोड है। तो ये पूछने लगते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ। तो वहाँ से वो डायरेक्शन बताएंगे कि वेदर सही है नहीं, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए ये अब उनसे कांटेक्ट करते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो अब वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन क्या मिली कि आपको अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न करना पड़ेगा ताकि इंग्लैंड वो पहुँच जाए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। तो अब इन्होंने अपनी डायरेक्शन, प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने से पहले इन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो ये इनका जो टैंक था, फ्यूल का जो टैंक था वो इनका सेकेंड था, मतलब एक ख़त्म हो चुका है और लास्ट था, मतलब अब इसके अलावा इनके पास कोई भी फ्यूल टैंक नहीं है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो अब इन्होंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की साइड में टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। तो अब ये जब टर्न कर रहे थे तो ये सोचने लगे कि हो सकता है कि मैं अब ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊं, तो ऐसा ये प्लान करने लगे। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो ये अब क्या सोचने लगे कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट मैं करूंगा, और शायद ये काफ़ी समय बाद अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, इसलिए अपनी फैमिली गेट टुगेदर के बारे में सोच रहे हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब इन्होंने अपनी फ्लाइट स्टार्ट करी तो देखिए उस समय कैसा सिचुएशन है। तो देखिए सब कुछ सही है, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये क्या सोचने लगे कि ये तो बहुत आसान फ्लाइट थी। अब एंटी क्लाइमेक्स होगा। अब देखिए क्या होगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस से आगे इन्हें आए हुए कितना किलोमीटर हो चुका था? 150 किलोमीटर्स। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब इन्होंने क्लाउड्स देखा, मतलब कि अब इनके सामने परेशानी आने वाली है। जब इन्होंने फ्लाइट स्टार्ट करी वेदर सही था, स्काई क्लियर था, स्टार्स थे, लेकिन अब जब ये 150 किलोमीटर आगे आ चुके तो इन्होंने क्या देखा कि स्टॉर्मी अब होने लगा वेदर। स्टॉर्म क्लाउड दे वर ह्यूज। क्या देखा इन्होंने? जैसे कि तूफान जैसे क्लाउड थे और बहुत बड़े बड़े थे क्लाउड। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और इनकी एरोप्लेन के आगे वो क्लाउड जो थे वो ऐसे आगे थे जैसे लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स स्काई के पास से आ गए हम। I knew I could not fly up and over them। अब ये कह रहे कि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं उस स्टॉर्म को क्रॉस करके मैं अपने एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं बचा, एक्स्ट्रा फ्यूल मेरे पास नहीं बचा है कि मैं अपने प्लेन को
उस स्टॉर्म की क्लाउड से बचाने के लिए नॉर्थ या साउथ किसी भी डायरेक्शन में मैं टर्न कर सकूं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि इनके पास इतना एनफ फ्यूल नहीं है कि अपने को बचाने के लिए ये दूसरी साइड जा सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अभी सोचने लगे कि मुझे अब पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन ये अपने होम भी जाना चाहते थे क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था। तो अब देखिए यहाँ ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। आपने क्लास 9th में द रोड नॉट टेकन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो राइटर है उनके सामने 2 ऑप्शंस थे कि उनमें उन्हें एक रास्ता चूज़ करना था और ज़रूरी नहीं है कि जो वो रास्ता चूज़ करे उसमें उन्हें सक्सेस ही मिले। तो यही चीज़ अब इस पायलट के साथ भी हुई कि इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये फ्रांस या तो ये पेरिस दोबारा वापस चले जाएं और या उस स्टॉर्मी क्लाउड्स का सामना करें, और अगर इन्होंने सामना किया, ये सक्सेस हुए उसमें, तो इन्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप द रोड नॉट टेकन से कंपेयर भी कर सकते हैं जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए इस सिचुएशन से रिलेटेड। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस रिस्क को लूँगा। क्या रिस्क? स्टॉर्मी क्लाउड्स को फेस करने का मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द एयर, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इन्होंने अब क्या किया, अपने जो प्लेन है उसे स्टॉर्म वाली साइड में इन्होंने फ्लाई कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब क्या हुआ, जब इन्होंने स्टॉर्मी क्लाउड्स में एंटर किया तो जब इनका प्लेन अंदर गया तो इनके चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक नजर आ रहा था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि क्लाउड्स थे चारों तरफ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता है, समझ नहीं आ रहा, तो एरोप्लेन जो है वो सही से नहीं फ्लाई कर पा रहा था, वो जंप करने लगा और हवा में ट्विस्ट होने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। अब इन्होंने डायरेक्शन के लिए कंपास को चेक किया, लेकिन कंपास को क्या हो गया, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। अब क्या होता है, जब कंपास जो खराब हो जाता है तो ये जो इसकी तीलियां हैं ये क्या होती है, राउंड राउंड घूमने लगती हैं, अदरवाइज वो एक डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जब अपना कंपास चेक किया तो ये जो इसकी तीलियां हैं ये क्या होती है, चारों तरफ घूम रही थी। तो इन्होंने देखा कि इनका कंपास भी जो है वो खराब हो चुका है, वो वर्क नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। तो अब इन्होंने क्या देखा, जो इनके पास बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे इन्हें कुछ हेल्प मिल सके उस स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए, तो वो भी सब खराब हो चुके थे। तो अब क्या होता है, जैसे हमारे साथ भी होते हैं, जब वेदर खराब होता है तो उसकी वजह से हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो क्योंकि इनके बहुत करीब था स्टॉर्म, तो इसलिए इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो खराब हो चुके थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो ट्राई किया। रेडियो किस लिए ट्राई किया, ताकि वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सके। तो अब तक आपने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेट्स सी, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जब डकोटा टेक ऑफ किया पेरिस से तो कैसा वेदर था, कैसा स्काई था। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नैरेटर टेक इट। तो जो नैरेटर ने रिस्क लिया उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट रिस्क डिड द नैरेटर डिसाइड टू टेक, और व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नैरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। जब उसने स्टॉर्म फेस किया तो क्या क्या डिफिकल्टीज नैरेटर को फेस करनी पड़ी। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट डिस्क्राइब द नैरेटर एक्सपीरियंस as he flew the aeroplane into the storm। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें बहुत जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने अंडरलाइन करी है, तो आप उनसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। अब इन्होंने जब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी पेरिस कंट्रोल रूम में, तो इन्होंने क्या देखा कि कोई आंसर नहीं आया। इसका मतलब है कि उनका रेडियो भी खराब हो चुका है। तो अब ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो ना तो इनके पास रेडियो था जिससे वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सके, ना तो इनके पास कंपास था जिससे वो डायरेक्शन पता कर सके, और ना ही इनको विजिबल हो रहा था कुछ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि ये स्टॉर्म में खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। सडनली क्या होता है,
जो स्टॉर्मी क्लाउड्स है उसी के बीच ही अचानक देखते हैं एक एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब इन्होंने क्या देखा कि इस एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं जल रही, लेकिन उन्होंने ये देखा कि स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच वो इनके जस्ट बगल में फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड मी, और इन्होंने क्या देखा कि पायलट का जो फेस है वो बिल्कुल इनकी तरफ है, मतलब वो पायलट जो है वो इनकी तरफ ही आ रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। और ये जब देखते हैं उस पायलट को तो देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में जब इनके पास कोई भी नहीं है, किसी से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई मिल जाएगा तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो ही कौन है? जो सेकेंड एरोप्लेन का जो पायलट है उसके लिए आया है, तो उसने इनको देख के अपना हैंड वेव किया और क्या बोला? फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तब इनको समझ में आ गया कि सेकेंड एरोप्लेन का जो पायलट है उसे पता है कि ये खो चुके हैं और वो इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अब सेकेंड एरोप्लेन वाले ने, पायलट ने क्या किया? उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो इनके आगे आगे वो एरोप्लेन चल रहा था ताकि ये फॉलो कर पाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और ये बहुत खुश थे। किस चीज़ में खुश थे? जब ये स्ट्रेंज एरोप्लेन, स्ट्रेंज इसलिए बोला गया क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है वो एरोप्लेन कहाँ से अपीयर हो गया। तो जब ये स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहे थे तो ये बहुत खुश थे। और कैसे फॉलो करते? लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि ओबीडियंट चाइल्ड होता है जो अपने पेरेंट्स की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें फॉलो करता है, तो वो वैसे ही फॉलो कर देते। तो यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और लगभग आधे घंटे बीत चुके थे और उसके बावजूद जो वो ब्लैक एरोप्लेन था, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वो इनके सामने ही था। तो आपने अभी टाइटल देखा है, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो इसी स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के नाम पे ही है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब इनके जो नैरेटर है उनके जो एरोप्लेन है उसमें लास्ट टैंक जो फ्यूल का बचा था वो उसमें केवल इतना ही फ्यूल था कि वो 5 या 10 मिनट्स और ज़्यादा फ्लाई कर सकते हैं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। अब फिर इनको दोबारा से डर लगने लगा कि अगर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्लेन क्रैश हो सकता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन इन्होंने क्या देखा? जो सेकेंड एरोप्लेन है वो धीरे धीरे नीचे की साइड जा रहे हैं और इन्होंने भी उसे फॉलो किया थ्रू द स्टॉर्म, मतलब जो स्टॉर्म है उसी के बीच में इन्होंने इसे फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अब इन्होंने क्या देखा कि सडनली ये क्लाउड से बाहर आ चुके हैं। एंड आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और इन्होंने क्या देखा कि 2 लाइन्स ऑफ लाइट, मतलब जब आप रनवे में जाते हैं तो वहाँ पे दोनों साइड में लाइट जल रही होती है, तो इन्होंने देखा, मतलब क्या, ये रनवे में सेफली पहुँच चुके थे। एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ। तो ये बहुत खुश हो गए कि ये बहुत आसानी से स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट की हेल्प से ये एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और वो भी अपने फ्यूल, जो इनके पास जो फ्यूल अवेलेबल है उसमें। I turned to look for my friend in the black aeroplane but the sky was empty. तो अब जैसे ही ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, ये उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स कहना चाहते, तो ये पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो क्या देखा? द स्काई वॉज एम्प्टी, कि स्काई में तो कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो ये स्ट्रेंज लाइन्स हैं। अब यहाँ पे आप इसे इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे क्योंकि ये एरोप्लेन जो है इनको पूरे रास्ते, पूरे स्टॉर्मी क्लाउड्स में मदद कर रहा था, लेकिन जब ये रनवे पे पहुंच गए तो इन्होंने क्या देखा कि वो एरोप्लेन तो कहीं है ही नहीं, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मतलब इन्होंने आसपास ढूंढा उसे लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो अब इन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड किया अपना प्लेन। एंड वाई डिड ही से आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा।
क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने रिस्क लिया, जो इन्होंने डिसीजन लिया उस स्टॉर्म को फेस करने का, उस रिस्क को लेने का, उसके लिए बिल्कुल सॉरी नहीं फील करें, क्योंकि इन्हें इनका डिसीजन बिल्कुल सही लगा। अगर ये उस डिसीजन को ना लेते तो वो हो सकता है अपनी फैमिली से ना मिल पाते। तो इसी बात के लिए कह रहे हैं कि अब इन्हें अपने डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो अब ये कंट्रोल टावर गए और वहाँ पे एक वुमेन बैठी थी जिनसे इन्होंने क्या पूछा, दैट वेयर आई वॉज, इनकी क्या लोकेशन थी, एंड हु द अदर पायलट वॉज, ये दूसरे पायलट के बारे में भी पूछने लगे। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्यों, क्योंकि ये उन्हें थैंक्स कहना चाहते थे। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब जैसे ही इन लेडी ने इनकी बात सुनी तो ये बहुत अजीब तरह से इन्हें देखने लगी, स्ट्रेंजली देखने लगी, जैसे कि ये समझ नहीं पा रही कि क्या कहना चाहते हैं, और फिर वो हंसने लगी। तो ऐसा क्यों है, लेट्स सी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब ये क्यों सरप्राइज थी, क्यों ये ऐसे इन्हें देख रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई एरोप्लेन इन्हें नज़र ही नहीं आया, उस स्टॉर्म में इन्हें कोई नज़र नहीं आया एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, और ये कह रही हैं कि आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था, आपका ही केवल था जिसे मैं रडार में चेक कर पा रही थी। रडार क्या होता है, जिसमें वो लोकेशन देखते हैं, जिसमें वो ट्रैक करते हैं कि कितने एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करें या कितने व्हीकल चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, उस रडार में देखा कि केवल एक पॉइंट आ रहा था, मतलब केवल एक ही एरोप्लेन था जो इस समय स्काई में फ्लाई कर रहा था। तो ये बहुत स्ट्रेंज है, इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या हो गया ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट डिड द पायलट रीच द एयरपोर्ट सेफली, एंड or the question can be asked that what kind of strange experience did the pilot have during his flight. The question can be asked related to the statement that I was not sorry to land off from the old Dakota. तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ फ्रेम हो सकते हैं। तो अब इनके मन में क्या सवाल आता है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। ये सोचने लगते हैं कि तो वो कौन था जिसने इनकी स्टॉर्मी सीजन में, स्टॉर्मी वेदर में हेल्प करी, जिसके पास ना तो कोई कंपास था ना तो कोई रेडियो, इनके पास कोई कंपास नहीं था, ना इनके पास कोई रेडियो था, ना ही इनके पास कोई टैंक में फ्यूल बचा था। तो अब इन्होंने एक ऐसे पर्सन से हेल्प ली जिसे ये जानते नहीं है, कोई आइडिया नहीं, और इवन जब ये एयरपोर्ट पे सेफली पहुंच गए तो उसका एरोप्लेन डिसअपीयर भी हो गया। इसीलिए स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अभी सोचने लगते हैं कि वो कौन था, वो पर्सन कौन था जो कि इस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था, और उसका एरोप्लेन कैसा था, ऐसा था जिसमें कोई लाइट ही नहीं जल रही थी। तो आपसे स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के अपीयरेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, आप इसे अपने आप कंफ्रेंड कर सकते हैं कि वो कौन था। हो सकता है कि कोई उनको डिवाइन हेल्प मिली हो, या हो सकता है कि उनका जो करेज है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, जो उन्होंने अपने पे कॉन्फिडेंस रखा, हो सकता है उसी की वजह से इनके सबकॉन्शियस माइंड ने इनकी हेल्प करी हो। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं, गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि शायद आपको कोई हेल्प मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने वो रिस्क जो लिया था उस स्टॉर्म को फेस करने का, वो खुद पे भरोसा रख के किया था। तो इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है जो बहुत ट्रबल से भरी हो, बहुत ऑब्स्टिकल से भरी हो, तो हमें कभी भी उस सिचुएशन को एस्केप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन प्रॉब्लम्स का, उन डिफ़िकल्टीज़ का, उन ऑब्स्टिकल्स का करेज से हमें बिल्कुल फियरलेस होकर उनका सामना करना है। हमें बिना डरना नहीं है, बल्कि हमें उनको ओवरकम करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। You can take the help of these quotes for framing the answer. Hard time don't create heroes. It is during the hard time when the hero within us is revealed. Next quotation is, being positive in the hard time of life will help you to overcome it sooner or effectively than being negative about it. So you can correlate the condition, the situation of
द नरेटर, द पायलट हु फेस द स्टॉर्मी क्लाउड्स। आप इसे कंपेयर कर सकते हो और आप इन कोटेशन की हेल्प ले सकते हो। थीम में मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो अपने आंसर फ्रेम करने के लिए। So this was all about the chapter. I hope that you like the video. If you like the video, please hit the like button. Those who have not subscribed the channel till now, please subscribe and press the bell icon for getting the latest notification. And please share the video with other students. Thank you all.